جیسا بھی ہوں لیکن تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ۔ اور جن جن لوگوں نے گنبد خضرا دیکھا ہے بڑے نصیب والے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ خدا کرے کہ وہ دن کو بھی نصیب ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے، سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے، سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے، میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ، میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ۔ اور سال پورا ہو نہیں سکتا مہینے کے بغیر، کیا مزہ دے گی انگوٹھی ایک نغینے کے بغیر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینے کے بغیر، مل نہیں سکتا خدا ہرگز مدینے کے بغیر، مل نہیں سکتا خدا ہرگز مدینے کے بغیر۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا سے مانگتے ہیں ہم تمہارا نام لے لے کر، خدا سے مانگتے ہیں ہم تمہارا نام لے لے کر، خدا سے مانگتے ہیں ہم تمہارا نام لے لے کر، خدا کو ہے تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ، خدا کو ہے تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ۔ اور زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، محبت کے ساتھ آپ کہیے سبحان اللہ۔ کہ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ شعر آخر محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ جو دیکھوں گا سرے محشر میری بخشش نہیں ہوگی، جو دیکھوں گا سرے محشر میری بخشش نہیں ہوگی، جو دیکھوں گا سرے محشر میری بخشش نہیں ہوگی، خدا کو واسطہ دوں گا تمہارا یا رسول اللہ،
خدا کو واسطہ دوں گا تمہارا یا رسول اللہ۔ جتنے لوگوں نے یہاں تراویح پڑھی اور حافظ صاحب کے محبین وغیرہ کی جانب سے، آپ سب کی جانب سے 13,786 روپے کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آپ سب کی روزیوں میں بے پناہ برکت نازل فرمائے، اسی طریقے سے اپنے ائمہ، علماء اور حفاظ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کے معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ عطا دے تم عطا لو، وہ وہی چاہے جو چاہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی حبیب یا رسول اللہ، الہ کا سادہ بندہ نوازا۔ یہاں پر جو کچھ بھی نعت مصطفیٰ پڑھی گئی، درود السلام کا نذرانہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا، مولا صحیح سے پڑھنے کا ثواب، شیرینی کا ثواب، پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل 1,24,000 کا مبیش انبیاء کرام رسول الزام، آپ کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، اولاد کرام، خلفاء راشدین، صحابہ کرام، صحابیات کرام، تابعین کرام، تبع تابعین کرام، جملہ ائمہ مجتہدین و چاروں امام و شہیدان کربلا و شہیدان اسلام و جمیع اولیاء الزام و بزرگان دین، مفتیان کرام، علماء الزام کی مقدس بارگاہ میں اس کا ثواب عطا فرما۔ الہ العالمین یکم رمضان شریف سے لے کر اب تک جو کچھ بھی حافظ قمر عالم صاحب عارفین قرآن عظیم تراویح کی شکل میں سنایا، مولا ان کا پڑھنا، مصلیان کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا جو کچھ بھی قرآن تراویح کے ذریعے انہوں نے پڑھا ہے، مولا صحیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں kheeri.com۔ آج 5 روزے مکمل ہوئے اور 6 یوم کی تراویح بھی مکمل ہوئی۔ ناظرین، اس وقت میں اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری ضلع کے قصبہ کھیری میں موجود ہوں، اور یہ محلہ سید باڑہ ہے جہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں۔ یہ رمشا کلینک ہے، اور رمشا کلینک کا بالائی حصہ، یہ بالائی منزل ہے، اور یہیں پر آج 6ٹھی تراویح کی رات تھی، اور آج قرآن پاک مکمل ہوا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ عام طور سے بیشتر مساجد میں 14 یا 15 دنوں کے لیے قرآن پاک مکمل ہوتا ہے۔ کچھ ایک شاید مساجد ہوں گی جہاں پر پورے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی رہی ہوگی، اور 1 ماہ میں قرآن پاک مکمل ہوتا ہوگا، لیکن اس جہاں پر آج ہم اس وقت موجود ہیں، یہاں کئی برسوں سے خاص تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور 6 یا 7-8 دنوں میں قرآن پاک مکمل ہوتا ہے۔ اس بارے میں ہم پوری تفصیلات آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پیشتر ہم آپ کو بتا دیں کہ حافظ قمر عالم عارفی صاحب جو یہاں پر مسلسل
तरावी के दौरान कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, कुरान पाक सुना रहे हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और चूँकि आज ख़त्म कुरान हुआ है, ख़त्म कुरान की ये तकरीब मुनक्किद भी हुई है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम हाफिज़ साहब को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आप कई बरसों से, कई सालों से तरावी के दौरान कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, कुरान पाक मुकम्मल कुरान पाक तिलावत कर रहे हैं, सुना रहे हैं। सबसे पहले तो यही बताइए कि रमशा क्लिनिक का जो ये बालाई हिस्सा है, बालाई मंजिल है, इस पर कितने साल से तरावी का एहतमाम किया जा रहा है और कितने दिनों की तरावी होती है? जी बहुत शुक्रिया। ये रमशा क्लिनिक की बालाई हिस्से पर से पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये एक अहाते की शक्ल में था, ये प्लाट की शक्ल में था, तब वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। 2014 में पहली बार यहाँ पर कुरान मुक़द्दस की तिलावत तरावी की नमाज में का एहतमाम किया गया था, जो कि 3 दिन में हुआ था। और उसके बाद से फिर 4 दिन में, और उसके बाद 5 दिन में, फिर अब कई सालों से 6 दिन में यहाँ पर एहतमाम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 11 साल हो चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन में 2 साल यहाँ नहीं हुआ था। इस हिसाब से यहाँ 9वीं बार कुरान मुक़द्दस की तिलावत तरावी की नमाज में मुकम्मल हुई है। हाफिज़ साहब ये बताइए कि मसाजिद में भी जाते हैं नमाजी तरावी की नमाज के लिए, और यहाँ भी आते हैं, और आज हमने देखा कि ख़ासी तादाद में नमाजी यहाँ पर थे। तो कितने नमाजी अंदाज़े के मुताबिक आते होंगे तरावी की नमाज के लिए 6 दिनों में जो ये कुरान पाक मुकम्मल हो रहा है? यहाँ पर तकरीबन 250-300 आदमी तरावी की नमाज में कुरान मुक़द्दस की तिलावत सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं। अच्छा, 250 से पौने 300 तक। अच्छा हाफिज़ साहब ये बताइए कि आप माशाल्लाह एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी आपका ताल्लुक़ है, और आपने असरी तालीम भी आपने हासिल की है, हिफ्ज़ भी आपने किया है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि हिफ्ज़ किस सन में आपका मुकम्मल हुआ था, आपके असातिज़ा कराम कौन कौन से हैं, और फ़ारिग़ आप कब हुए थे? मेरा हिफ्ज़ सन 1999 ईस्वी में मुकम्मल हुआ था, और मेरे उस्ताद गिरामी जो सबसे पहले थे, जो कस्बा खीरी की मोहल्ला सैयदवाड़ा में जो वाक़ मस्जिद है, मस्जिद गौसुल आज़म, उसमें इमाम थे हज़रत हाफिज़ व क़ारी अब्दुल रकीब साहब। मैंने उनसे हिफ्ज़ की तालीम हासिल की, और उसके बाद क़ारी सगीरुद्दीन साहब से हासिल की, उसके बाद क़ारी दीन मोहम्मद साहब से हासिल की, और इसके अलावा मौलाना ग़ुलाम नबी खां साहब से भी शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल है। अब तक के आपने कहाँ कहाँ तरावीह के दौरान कुरान पाक की तिलावत की है, कुरान पाक सुनाया है, कहाँ कहाँ आपने तरावीह पढ़ाई है, और कितने साल का मोबेश हो चुके हैं? तरावी की नमाज में कुरान मुक़द्दस की तिलावत सबसे पहले 1999 ईस्वी में मैंने दरगाह शरीफ वाली मस्जिद में पढ़ाया था, 1420 हिजरी में। और यानी 15 साल हो गए? नहीं, तब से लगाकर अब तक 26 साल आज हो चुके हैं। 26 साल कुरान मुक़द्दस मुझे सुनाते हुए हो चुके हैं। और इसके अलावा मैंने दरगाह शरीफ में पढ़ाया है, उसके अलावा मुगली टोला मस्जिद में जो मस्जिद वाक़ है बिलाल मस्जिद, उसमें पढ़ाया है। मुगली टोला में जो दारुल उलूम गरीब नवाज से मुत्तसिल मस्जिद है, उसमें पढ़ाया है। उसके अलावा कुछ मुतफर्रिक़ सिपारे जोशी टोला मस्जिद में भी पढ़ाए हैं। उसके अलावा कच्ची वाली मस्जिद जो बोली जाती है, उसमें भी कुछ मुतफर्रिक़ सिपारे पढ़ाए हैं। और बस इसी तरीक़े से 26 साल हो चुके हैं, और तरावी की नमाज में कुरान मुक़द्दस सुनाने का जो मेरा ये 31वीं बार पूरा हुआ है। मतलब 5 साल मैंने 2 बार सुनाया है, और इसलिए 26 और 5 31 साल, 31वीं बार कुरान मुक़द्दस की तिलावत तरावी की नमाज के दौरान मुकम्मल हुई। माशाल्लाह। तो हाफिज़ साहब ये बताइए कि हिफ्ज़ आपने किया, और नौजवानी की उम्र आज भी आपकी, आप माशाल्लाह नौजवान ही हैं, असरी तालीम भी आपने हासिल की। ज़रा असरी तालीम के बारे में बताएं, कहाँ तक आपने असरी तालीम हासिल की है? असरी तालीम मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और उसके अलावा BSc किया है, MA किया है, डबल MA किया है, और उसके अलावा B.Ed किया है। उसके अलावा TT पास किया है 2011 में, 120 नंबर थे मेरे। और उसके बाद अल्लाह के फजल व करम से, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तवस्सुल से 2015 से मैं सरकारी प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ।
माशाल्लाह नाज़रीन, हमने ये सवाल इसलिए हाफिज़ साहब से किया है कि आज की जो यूथ जनरेशन है, जो नई नस्ल है, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो असरी तालीम भी हासिल कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत हाई लेवल की तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन कई उनमें ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हिफ्ज़ भी किया है और बाकायदा वो कुरान पाक तरावी के अय्याम में कुरान पाक भी मसाजिद वग़ैरह में वो सुनाते भी हैं। तो ये इसलिए मैंने ये सवाल किया कि इससे एक तरग़ीब हासिल करना चाहिए हमारी नई नस्ल को कि वो असरी तालीम भी हासिल करें और साथ साथ में जो वो मज़हबी तालीम भी, कोई हाफिज़ बने, कोई आलिम दीन बने, तो वो मज़हबी तालीम भी हासिल करे। हाफिज़ साहब, ये बताइए कि नई नस्ल में बहुत से नौजवान इसी कस्बा कीरी में भी ऐसे हैं जो हुफ़ाज़ कराम भी हैं और माशाअल्लाह जो है उन्होंने हायर एजुकेशन हासिल किया है। क्या कहना चाहेंगे आप नई नस्ल से? जी माशाअल्लाह, कस्बे में ऐसे बहुत से हुफ़ाज़ कराम हैं जिन्होंने मज़हबी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी हासिल की है और वो सब अल्लाह के फज़ल व करम से कामयाब हैं। और हम नई नस्ल से ये उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले आपको अपने मज़हबी तालीम हासिल करनी चाहिए। सबसे पहले कुरान मुक़द्दस की तालीम जो कि अशद ज़रूरी है, जो इल्म फ़र्ज़ आइन है, उसको हासिल करना चाहिए। उसके बाद आप असरी तालीम भी हासिल करिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ऐसा फ़ज़ल फ़रमाता है, ऐसा करम फ़रमा देता है कि सारा जब इंसान मज़हबी तालीम हासिल करता है तो असरी तालीम बहुत उसके लिए आसान हो जाती है और उसके लिए बहुत ही कायदे से उसको समझ में आती है और उसके लिए उसकी जो राह होती है तालीम की बहुत आसान हो जाती है। हाफिज़ साहब, एक ये भी चीज़ है, पूछना चाहेंगे हम आपसे कि जब आप असरी तालीम हासिल कर रहे थे यानी दुनियावी तालीम हासिल कर रहे थे, हिफ्ज़ भी आप उसी दौरान कर रहे थे, तो हिफ्ज़ में कोई दिक्कत तो नहीं आती थी या हिफ्ज़ की वजह से असरी तालीम हासिल करने में कोई दिक्कत तो नहीं आती थी? नहीं, अल्लाह के फज़ल व करम से मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, बल्कि कुछ ऐसा हुआ कि अल्लाह के फज़ल व करम से कि मेरे जो उस्ताद गिरामी थे हज़रत हाफिज़ व कारी अब्दुल रकीब साहब, तो वो मेरी जो पढ़ाई की जो टाइमिंग थी वो इस तरीक़े से ही उन्होंने रखी थी कि मुझे स्कूल के बाद और ट्यूशन के बाद वो मुझे पढ़ा सकें, मेरा सुन सकें, सबक सुन सकें, पिछला सुन सकें, सबक पारा सुन सकें। तो इसलिए मुझे कोई असरी तालीम के साथ मज़हबी तालीम हासिल करने में दिक्कत नहीं आई। ख़ास तौर से हज़रत हाफिज़ व कारी अब्दुल रकीब साहब का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। हिफ्ज़ में किसने मोटिवेट किया आपको? घर के अगर घरेलू जो अशख़ास हैं उनके बारे में मालूम करें। हिफ्ज़ के लिए हमारे वालिद गिरामी की एक ख्वाहिश थी, एक तमन्ना थी, एक बहुत उनकी आरज़ू थी। और जैसा कि उन्होंने बताया, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन कि हमारे दादा मरहूम अमीर अली साहब की भी एक ख्वाहिश थी कि हमारे ख़ानदान में कोई हाफिज़ कुरान हो, तो इसलिए मेरे वालिद गिरामी की ये ख्वाहिश थी और उन्हीं की कोशिशों की वजह से मैं हिफ्ज़ कर सका। एक दो और सवाल हम आपसे मालूम करना चाहेंगे, ख़ास तौर से तरावी के सिलसिले में। तरावी के हवाले से बहुत से हज़रात हैं जिन्होंने हिफ्ज़ किया है, लेकिन जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो तरावी ही नहीं वो सुनाते हैं। तरावी के लिए क्या कुछ हिफ्ज़ करने के बाद अलग से कुछ मश्क करना पड़ती है, दौर करना पड़ता है या कोई रिवीज़न वगैरह करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? जी बिल्कुल, हिफ्ज़ करना उतना मुश्किल नहीं है जितना हिफ्ज़ को याद रखना मुश्किल है। इसलिए जब भी आपको तरावी पढ़ाना होगी तो आपको हर साल उसका रिवीज़न करना पड़ेगा और रिवीज़न करते रहेंगे, मश्क करते रहेंगे। और वैसे तो अगर आप हर साल पूरा साल पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोई ख़ास मश्क नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आखिर में आपको मश्क करना पड़ेगी। और जो अच्छे तरीक़े से मश्क कर लेते हैं फिर वही तरावी पढ़ा पाते हैं। आप कई साल से तरावी पढ़ा रहे हैं, तो जब रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब होता है, कब से आप तैयारी शुरू कर देते हैं तरावी के लिए, या तरावी का एक तरह से एहतमाम या तरावी के लिए एक तरह से प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं? क्या कब से जो है शुरू करते हैं, तैयारियां कब से शुरू करते हैं? वैसे तो मतलब जो है पूरा साल ही मेरा मामूल रहता है थोड़ा बहुत पढ़ने का, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में मैं शाबान महीने से तरावी की लिए तैयारी शुरू कर देता हूँ। आखिरी बस सवाल ये है कि आज 6 तरावी की रातें हो गई, यानी छठी तरावियात थी, छठी तरावी में यहाँ मुकम्मल हो गया। कहीं पे 14 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा,
कहीं पे 10 दिनों में, 9 दिनों में इस तरह से मुकम्मल हो जाएगा। मुकम्मल होने के बाद में अमूमन आम तौर से लोग ये समझ लेते हैं कि अब तरावी की नमाज पूरी हो गई, फिर वो थोड़ा सा आज़ाद हो जाते हैं तरावी में। तो ऐसे लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि नहीं भाई, अभी कुरान पाक मुकम्मल हुआ है, अभी तरावी तो आपको उस वक्त तक पढ़ना है जब तक कि ईद का चांद ना नज़र आ जाए, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, हम उन लोगों से अपील करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में चूँकि रमज़ान का चाँद देखकर तरावी शुरू की जाती है और ईद का चाँद देखकर तरावी मुकम्मल होती है, इसलिए उनको चूँकि तरावी सुन्नत मौक़दा है, आपको 30 दिन तरावी पढ़ना है और तरावी की नमाज के दौरान कुरान की तिलावत मुकम्मल हो जाती है। लेकिन आपको तरावी ना पढ़ें ऐसा, चूँकि अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो गुनहगार होंगे, इसलिए तरावी आपको 30 दिन पढ़ना है और तरावी की नमाज के दौरान कुरान की जो तिलावत मुकम्मल हो जाती है उसका सवाब आपको जो मिलता है वो अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह मिलेगा। नाज़रीन, रमशा क्लिनिक के जो मालिक हैं डॉक्टर मोहम्मद रज़ी साहब, बस आप सिर्फ इतना बता दें कि ये जहन में कैसे आया था कि हमको अपने मकान में या अपनी क्लिनिक के बालाई हिस्से पर, बालाई मंजिल पर ये तरावी का एहतमाम हम 6 रोज़ा या 5 रोज़ा या 3 रोज़ा करेंगे, ये ख्याल कैसे आया था? हाफिज़ जी हमारे छोटे भाई हैं, इन्हीं का मशवरा था कि हम पढ़ाएंगे, इंतज़ाम आप करिए। तो आइंदा साल के लिए जो है आपके वहाँ बहुत से माशाल्लाह 250-300 लोग आते हैं नमाज तरावी पढ़ने के लिए, आइंदा साल के लिए क्या कहना चाहेंगे? इंशाअल्लाह अगली बार जो है 2 मंजिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो 2 मंजिल पे जो लोग वापस गए इंशाअल्लाह उनको वापसी नहीं होगी, सबको जगह मिलेगी इंशाअल्लाह। हमारे दरमियान कामिल साहब भी बैठे हुए हैं। कैसा एहतमाम लगता है डॉक्टर साहब का यहाँ पर, जो ये 6 रोज़ा, अब 6 रोज़ा हो रही है, कुरान मुकम्मल हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? माशाअल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है और कमर आलम साहब हाफिज़ जी बहुत अच्छी तरावी पढ़ते हैं। इनका नाम सुन करके मैं डीपुर से आता हूँ और मेरे साथ में साहिब ये भी आते हैं और इंशाअल्लाह अगली बार भी इनकी मैं सुनना चाहूँगा। हमारे साथ में इस वक्त हाफिज़ कमर आलम साहब के वालिद गिरामी हाजी शाकिर अली अंसारी साहब इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी मालूम करना चाहेंगे कि माशाल्लाह आपने अपने साहबजादे को हिफ्ज़ भी कराया और वो हिफ्ज़ का जो एक हक़ होता है वो पूरी तरह से उस हक़ को अदा कर रहे हैं। इसके अलावा आपने असरी तालीम भी इन्हें दिलवाई, कैसा महसूस करते हैं हाजी साहब आप? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके लोगों ने बताया है तो महसूस तो हम बहुत अच्छा करते हैं और हमारे दिल में ये बड़ी तमन्ना थी और ये हसरत भी रहती है और अब भी आज भी मेरी हसरत है कि मेरे ख़ानदान से कोई, ये तो हाफिज़ ही है, मेरी हसरत और तमन्ना है को आलिम दीन बन करके मेरे नाम को रोशन करें। सुभान अल्लाह। तो देखिए ये ख्वाहिशात की बात होती है। इस वक्त खीरी.com के जो मजहबी उमूर के मुशीर हैं कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब, वो भी इस महफ़िल में मौजूद हैं। कारी साहब क्या कहना चाहेंगे इस मुबारक मौके पर? बस माशाल्लाह मैं यही अर्ज़ करूँगा, जैसा कि हाफिज़ कमर आलम साहब, डॉक्टर रज़ी साहब के इस क्लिनिक पर एहतमाम होता है तरावी का और 6 रोज़ा तरावी मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद यहाँ के जितने मुसल्लियान हैं या और जो मसाजिदों में लोग तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं, मैं सबसे यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि चाँद, जैसा कि हुक्म है, चाँद देखकर तरावी शुरू की जाए और चाँद देखकर तरावी ख़त्म किया जाए। तो लिहाजा सिर्फ़ कुरान सुन लेने के बाद ही काफ़ी नहीं है, बल्कि पूरा महीना तरावी का एहतमाम करें, इसलिए कि ये माह रमज़ानुल मुबारक ज़ह नसीब कि हम और आपको मिला है, तो क्यों ना हम इस माह मुबारक में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नेकियां कमा लें। सुभान अल्लाह। और इस दरमियान यहाँ पर हमारे करम फरमा बड़े भाई आली जनाब मास्टर रफ़ीक अहमद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। मास्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इस मुबारक महफ़िल के हवाले से? 6 रोज़ा जो कह लीजिए कि तरावी हुई है, 6 रोज़ा, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और डॉक्टर साहब जो एहतमाम कर रहे हैं, जिस तरह से हाफिज़ साहब कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और माशाल्लाह 250-300 हज़रात यहाँ पर नमाज तरावी के लिए ख़ास तौर से आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में हमारे यहाँ पर उलमा लोग सभी तशरीफ़ फरमा हैं, इन लोगों ने बताया है। और जैसा कि एक बात आपने कही थी कि ये तो लोगों में मुगालता
रहता है कि शायद 6 दिन की हमने तरावी पढ़ ली, बस ये हमारा सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन हाफिज़ जी ने बहुत साफ़ लफ्ज़ों में इस चीज़ को आज बताया भी है। सबको, जितने भी लोग यहाँ पर सुनने वाले थे, बहुत अच्छी तरह से जो है हाफिज़ जी ने इसको साफ़ कर दिया है कि इस 6 दिन के बाद आपका सिलसिला ख़त्म नहीं होता है। अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि ये सिलसिला ख़त्म हो गया, तो ख़त्म नहीं होता है। ये जब तक ईद का चाँद नहीं निकलेगा, आप सभी लोगों को पढ़ना है। ये चीज़ हाफिज़ जी ने बताई। और बाकी रही इंतज़ाम की बात, तो डॉक्टर साहब भी हमारे भाई हैं, इनका बहुत ही उम्दा इंतज़ाम रहता है और बहुत ही सबका ख्याल रखते हैं। ये इतना ख्याल रखते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, हर आदमी को जगह मिल जाए, और अल्लाह ताला इनको उम्र दराज करे। ये हमेशा ऐसे ही प्रोग्राम कराते हैं। बहुत शुक्रिया। हाजी साहब भी यहाँ पर दुआया कलमात आप भी कह दीजिए, डॉक्टर साहब के लिए कह दीजिए और हाफिज़ साहब के लिए कह दीजिए। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। डॉक्टर रजी साहब हमारे छोटे भाई हैं, और जो ये पढ़ने पढ़ाने वाला जो हिसाब किताब इन्होंने सोचा है वो बहुत ही बेहतर है और बहुत ही अच्छा है। इंशाअल्लाह आगे और ज़्यादा बेहतर होगा, और हम लोग खुद इसमें जो है मुलव्विस रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कुछ तबीयत वगैरह मेरी ठीक नहीं रहती है तो थोड़ा इसमें दिक्कत होती है, वरना मुझे तो बहुत खुशी है कि ये जो प्रोग्राम हमारे छोटे भाई रजी अहमद साहब कराते हैं, और इंशाल्लाह इसी तरह कराते रहेंगे। तो नाज़रीन, आज ये जो ख़त्म कुरान की तकरीब थी मुकम्मल हो चुकी है, और हमने अभी क़िबला हाफिज़ साहब से भी बात की और बहुत से जो यहाँ पर हाज़रीन हैं उनसे भी हमने बात की। नाज़रीन, बेशक तरावीह की बहुत ही फ़जीलत है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जो रमज़ान के मुबारक महीने में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान की रातों में क़याम करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है, उसकी बख्शिश फरमा देता है। हज़रत अल्लामा अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस मुबारक की तफसीर बयान करते हुए कहते हैं कि जो क़याम है रमज़ान की रातों का, उसकी मुराद तरावीह की नमाज से है। और आपने फरमाया कि जो तरावीह की नमाज अदा करता है रमज़ानुल मुबारक के महीने में, तरावीह की नमाज पढ़ता है सवाब हुसूल सवाब के लिए ईमान के साथ, तो अल्लाह ताला उसके तमाम सगायर गुनाहों को अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देगा। तो नाज़रीन, खीरी.com की ये कोशिश है कि रमज़ानुल मुबारक के अयाम में जो ख़ास मौक़े होंगे उनका इंशाअल्लाह ताला हम कवरेज करते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे। बस हमारी बहुत ही अदब व एहतराम के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के लिए भी गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफ़रान अहमद को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।